I am not audible. Just reply I am audible or not. I am audible or not. Uh, okay, I am audible, I think. No? Someone reply me, I am audible. Okay, dear participant, today welcome to this very important and very precious of the workshop on ChatGPT and AI tools, a modern assistant for teachers. I think everyone know about the okay, what is the ChatGPT and how ChatGPT is work. What we will learn here, okay, how we can use the ChatGPT like a teacher. Eh? How can create a lesson plan? How can create a assignment? How can create a multiple questions? And how can there is a lot of things we can create through the Chat GPT and AI tools. So today we will discuss here about the GPT, and after that, in tomorrow we will discuss about there is a lot of the AI tool like a Magic AI tool, Class Point, and there is a lot of the AI tools. है ना? So I think sir, without any delay, we should start this workshop. Time is I think 6 uh, 6 o'clock. So now, without any delay, we will start. And first of all, we will learn about okay, exactly what is the. We will in the session first. We will discuss about the introductions of AI and in educations. You know, okay, what is the importance of the AI in educations? How we can use the AI tools for the educations and teaching assistant. You know, so there will be the two sessions we have already posted our schedule in group. You know, so there are the session one is the introduction to the AI in the education. So basically, everyone know the this era is called artificial intelligence era, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना? The artificial intelligence is rapidly transform the various industries. तो one of the industries is education is also, है ना? तो ये क्या कर रहा है जब इससे एजुकेशन इसमें शामिल हो रहा है एआई इंडस्ट्री में तो इसने बहुत ज्यादा there is the vast changes of the education system. Uh, Actually, whenever we are teachers, whenever we are doing the मतलब we are teach in the classroom, है ना? जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं तो क्या होता है ना हमारे पास एक एक ब्लैक बोर्ड होता है एक चौक होता है ना? लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है द चेंज द माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो किस तरह से टीचर्स ने का माइंडसेट चेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल द लास्ट मंथ वी हैव लर्न अबाउट के एक जो टीचर रोबोट है वो किस तरह से टीचर रोबोट क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों को वो सब क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है. ठीक है तो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशनाइज हो रहा है ना लर्निंग एक्सपीरियंस टू द बाय प्रोवाइडिंग अ पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम एंड आउटमेटेड ग्रेडिंग. तो जब हम एजुकेशन में जब टीचिंग में एआई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है वो क्लियरली ऑटोमेटेड हो जाता है और हम बहुत सारी चीजों को बहुत कम टाइम में वी कैन डू द वेरी शॉर्ट टाइम. तो
the introductions of AI actually, the artificial intelligence is rapidly transforming various industries, and education is no exceptions. If refer to the ability of the machine to learn from the data, recognize the pattern, and perform tasks, and typically require the human intelligence. In the context of the educations, AI can revolutionize the learning experience by providing a personalized instructions, intelligent tutoring system, and automated grading. For example, we will हम लोग जो ला हम लोग the we will learn के how to we will learn in the practical के how can we use the this artificial intelligence tool like a chat GPT and Gemini AI and other artificial intelligence, how can we use for the teaching, है ना, क्या पर्पस है इनका और किस तरह से यूज होते हैं, कैसे हम लोग यूज होते हैं, वो हम जो प्रैक्टिकल का हमारा सेशन 2 में जो प्रैक्टिकल का जो सेगमेंट है उस पर हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि थ्योरेटिकल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, तब सबसे इंपॉर्टेंट है की इम्पैक्ट ऑफ द एआई ऑन द एजुकेशन। Whenever we are using the artificial intelligence on the education, what is the impact, है ना, how we can revolutionize this segment to the in the field of the education। ठीक है, the number one is the personalized learning। AI can tailor the education content and pace to the individual student need, ensuring the more engaging and effective learning experience। So whenever we are using the AI, तो वी कैन गिव द पर्सनलाइज लर्निंग टू द आवर स्टूडेंट, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पर्सनलाइज लर्निंग को हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। द अनदर वन इज द इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग। वेन एवर द एनीवन, जो भी आपके क्लास में जो भी बच्चा है और वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है, उसका माइंड अच्छा नहीं है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो कि यू गो टू द दिस AI tool and you can learn more and more thing about the, for example, in the classroom, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 60 and 50 और 40 and 30 student is there, है, तो क्या हो जाता है, आप पर्सनली एक स्टूडेंट पे यू कैन नॉट ड्रॉ द अटेंशन, बट whenever we are using the AI in artificial intelligence, you can recommend the your students, है ना, आप अपने स्टूडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस तरह से चैट जीपीटी या जेमिनी एआई या दूसरे एआई टूल्स का यूज करके आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने साइंस है, मैथ है व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में यू कैन लर्न मोर एंड मोर। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट के साथ पर्सनलाइज लर्निंग, वो क्या कर देगा, उस अपने पर्सनलाइज लर्निंग हर चीज का आंसर अपने से ढूंढ लेगा। ठीक है, और 24/7 वो फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, तो एआई पावर ट्यूटर्स कैन प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। ठीक है, तो क्या क्या जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई आंसर, कोई आपके दिमाग में माइंड में आंसर है कि व्हाट इज द बायोलॉजी एंड व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द मैथमेटिक्स, एंड यू हैव द एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द योर सब्जेक्ट, है ना, तो वो क्या कर देगा द एआई गिव यू द आंसर एंड गिव यू द गाइडलाइन। The AI will provide the guideline about the your subject। ठीक है ना, आंसर योर क्वेश्चंस, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देगा, एंड ऑफर द फीडबैक और इनहेंसिंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, और तुरंत फीडबैक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स को तुरंत ही कुछ असाइनमेंट दिया है, कुछ दिया, वो क्या कर देगा, ये तुरंत ही फीडबैक का भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता ताकि द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग का क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई आप कोई मार्क्स दे रहे हैं, है ना, कोई ग्रेडिंग कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो क्या करता है, तो क्या करता है, तो एआई विल द हेल्प टू द ऑटोमेटेड द ग्रेडिंग, वो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग बता देगा कि हु इज द फर्स्ट, हु इज द कितना नंबर फर्स्ट इन द क्लास, second in the class, third in the class, or the grade of the student, what is the grade of the student, है ना, you can justify। देखो हम लोग आज प्रैक्टिकल में इस चीज को भी हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑटोमेटेड करते हैं ग्रेडिंग को। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी,
AI can help to make the education more accessible to the student with the disabilities by the providing assistant technology and personalized support. तो अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर डिसेबल। तो जो वो डिसेबल होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो उनको बहुत सारे मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एट द हेल्प ऑफ द AI टूल्स वो लोग क्या कर सकते हैं, दे गेट द स्टडी मटेरियल वेरी इजीली। दे कैन एक्सेस द स्टडी मटेरियल एजुकेशन मटेरियल वेरी इजीली इन एवरी ईच एंड एवरी अबाउट द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और दिस इज एज ए पर्सनलाइज सपोर्ट फॉर द डिसेबल्ड पीपल्स। ठीक है ना। द अनदर वन इज कि the role of chat GPT as a AI powered teaching assistant. तो जैसे कि we have already discussed about the chat GPT give you the answer, create the answer, your informations and a generate idea. You have an idea, you can say you can ask the chat GPT के provide me the lesson plan of the this about the this subject, give the जो भी आप अपना उसमें जो भी आप अपना उसमें ऐड करना चाहते थे, प्रोवाइड द फीडबैक और फैसिलिटेट द डिस्कशन। और उसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन discussion also, okay, how it is the engage student in the meaningful discussion by the asking through the provoking questions and providing a different viewpoint, है ना। तो हम लोग फैसिलिटेट क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट द डिस्कशन, प्रोवाइड फीडबैक, जनरेट आइडिया, आंसर द क्वेश्चन। और इन सबका वी विल डू द प्रैक्टिकल इन द लास्ट ऑफ द दिस सेशन। ठीक है ना। द नेक्स्ट सेशन विल बी द हैंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है ना। द अनदर वन इज तो अनदर वन इज तो the benefit of the using the AI tools in the classroom. Why we will use the जो भी हमारे टीचर्स है, हम लोग ऑलरेडी वी हैव द ट्रेडिशनल मेथड, वी कैन टीच आवर ट्रेडिशनल मेथड। व्हाई वी आर यूजिंग द AI टूल इन द क्लासरूम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो AI टूल्स है, AI टूल्स क्या करता है, इनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट। वो ये कह रहा है कि आपके स्टूडेंट के एंगेजमेंट को पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहा है, मेकिंग मोर रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑफ द स्टूडेंट, है ना। इनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट के जो रिलेटेड फील्ड है स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंग वो उसको एंगेज कर रहा है, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। जब वेन एवर वी आर यूजिंग द AI टूल, जहां पर हमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स होगी, सब्जेक्ट की मिस्टेक होगी, क्वेश्चंस की मिस्टेक होगी, तो वो क्या करेगा, तो AI टूल विल यू सपोर्ट यू अचीव द बेटर रिजल्ट, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन आइडिया और वी आर आस्किंग द एनी क्वेश्चंस कि वी आर कि व्हाट इज द ताजमहल, और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है और ये इसे कब कब बनाया गया, क्या है। तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चैट जीपीटी कैन हेल्प यू एंड गिव यू द आंसर योर क्वेश्चंस, इंक्रीज इफिशिएंसी। वो क्या करता है, जब कोई आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछते हैं चैट जीपीटी, कुछ सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी, तो वो क्या करता है, आपकी इफिशिएंसी को बढ़ाता है। और क्या करता है, आपको एक नए नए आइडियाज देता है, नए नए वर्ड देता है ना। और आप बहुत ही कम टाइम में क्या करते हैं, अपना काम कर सकते हैं ग्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकता। तो ये क्या कर देता है, ये आपके टाइम को टाइम को सेव करता है। इनहेंस एक्सेसिबिलिटी, AI कैन हेल्प द मेक द एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल स्टूडेंट टू द डाइवर्स द नीड। ठीक है, जब जहां पर जरूरत होगी स्टूडेंट को, वहां पर वो बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करता है AI। ठीक है ना। द अनदर वन इज दिस द बेनिफिट ऑफ द AI। ठीक है ना। द अनदर वन इज द सेशन टू वी विल डिस्कस हियर द गेटिंग द started the with the chat GPT। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कि व्हाट इज द चैट जीपीटी। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द चैट जीपीटी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत ब्रीफली कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, है एज ए टीचिंग असिस्टेंट ये क्या इसका क्या रोल है। तो ना, चैट जीपीटी इज द एडवांस लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय द ओपन AI
The OpenAI is the company who is make the chat GPT. Chat GPT is a like a chatbot. ठीक है ना? तो utilizing the chat GPT 3.5 architecture known for the exceptional language skill trained on the diverse internet text until the January 2022. This is the main point of here कि जो उन्होंने बताया कि जो भी जो टैक्स है यहाँ पर, जो टैक्स यहाँ पर अवेलेबल है किसमें, चैट जीपीटी में अवेलेबल है, वो टैक्स क्या है, अंटिल द 2020 जनवरी 2020 तक का ही टैक्स इस पर अवेलेबल है। उसी टैक्स के इसके वही टैक्स आपको वहां तक टैक्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। आप ये सोचते हैं कि 2024 का टैक्स यहाँ पर आ जाए, तो वो नहीं है। तो चैट जीपीटी में क्या है, चैट जीपीटी हैज ए 2022, ठीक है ना। इट कॉम्प्रिहेंडेड एंड जनरेटेड ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। क्या करता है, ह्यूमन लाइक, जिस तरह ह्यूमन लिखता है उसी तरह से चैट जीपीटी आपके टेक्स्ट को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकता है। तो क्या करता है, 175 मिलियन पैरामीटर। तो ये 175 मिलियन पैरामीटर द लास्ट ईयर थे, लेकिन अब क्या कर दिया है, चैट जीपीटी हैज ए मतलब लार्ज पैरामीटर। लार्ज पैरामीटर का मतलब ये हो गया कि यू कैन थिंक, जो भी आपके दिमाग में है, जो आप सोच सकते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज से ज्यादा क्या करता है चैट जीपीटी, आपसे कहीं ज्यादा, आपसे कहीं फास्ट सोचता है, समझता है, और ये आपकी आपकी लैंग्वेज को समझता है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये जो भी डाटाबेस, जो भी इंटरनेट डाटाबेस में, जो भी डाटाबेस अवेलेबल होगा, वो तुरंत जस्ट ए सेकेंड द चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड यू द होल आर्टिकल, रिसर्च पेपर, जो भी आप यहाँ से जो चाहेंगे, चैट जीपीटी चाहेंगे, चैट जीपीटी विल प्रोवाइड यू। The chat GPT can capture the long range dependency of the coherent responses. ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक some people are the from the university level, they are the teacher in the university. तो जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि रिसर्च पेपर कैसे लिख जाए, रिसर्च कर रहे हैं या अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो तब क्या होता है, द चैट जीपीटी कैन हेल्प यू, चैट जीपीटी कैन राइट द ऑल रिसर्च आर्टिकल, ठीक है ना, पूरा रिसर्च आर्टिकल आपको लिख देगा विद द रेफरेंसेस। लेकिन उसमें रिसर्च आर्टिकल तो लिख दिया, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या होगी कि whenever you are the check the plagiarism deductions of this article, there will be the 100% the AI written, ठीक है, वहां पर AI written होगा, तो वहां पर आपकी चोरी पकड़ ली जाएगी। लेकिन अपर यू हैव द माइंड, यू हैव द टेक्निक टू द हैंडल ऑफ द सच टाइप ऑफ द लैंग्वेज, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, और पैराफ्रेज करने के बाद फिर वो जो AI जब जब AI डिडक्शंस में जाएगा, तो आपका प्लेजर फ्री होगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो टीचर्स है वो टीचर्स के लिए चैट जीपीटी काम करता है ना। आप कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, इफ यू वांट टू के आपने पूछा चैट जीपीटी से कि मुझे एक सोशल सिस्टम इन इंडिया पे एक लेसन प्लान तैयार कीजिए, और लेसन प्लान में क्या क्या चीजें होंगी, क्या होगा, द प्रॉम्प्ट विल बी गिवन बाय यू, ठीक है ना। However, the limitation include the potential the inaccuracy, biases, and occasional lack of the clarification of clear queries। अच्छा, अब ये तो फैसिलिटीज होगी कि हमें चैट जीपीटी ये भी देता है, चैट जीपीटी हम लोगों को बहुत सारा कंटेंट देता है, आर्टिकल लिख सकता है, हमें लेसन को प्लान कर सकता है, हमारा असाइनमेंट लिख सकता है, हमारे क्वेश्चंस लिख सकता है, हमारे हमारे द चैट जीपीटी कैन क्रिएट द आवर एग्जाम्स पेपर, चैट जीपीटी कैन क्रिएट द लॉट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, वेरी सिस्टमेटिक तरीके। बट देयर इज ए सम problems or limitations for the chat gpt. Chat gpt mention in your website कि this may be the biased, है ना, this may be the wrong answer, may be the wrong, है ना। तो वो क्या कह रहा है, उसने पहले से ही बता दिया कि जो आप ढूंढ रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं, जो आपने किया है, वहां पर सब कुछ सही नहीं हो सकता है, वहां पर इट्स मे बी रॉन्ग, वो बाइस्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, वेन एवर द वी कैन गेट द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी, तो हमें चैट जीपीटी से सिर्फ हेल्प लेना है
टोटली हमें चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स के बारे में हमें पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना। तो आज हम लोग जी यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी और जेमिनी एआई के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक और टूल है बिंग एआई, है ना। तो इन 2-3 टूल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करके कि जो ये टूल्स हैं जैसे किस तरह से काम करते हैं ना। तो पहले हम लोग चैट जीपीटी को समझ ले। तो अब जब चैट जीपीटी को जब हमने समझ लिया, तो चैट जीपीटी को समझने के बाद हमें क्या है, अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी क्या किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है चैट जीपीटी, तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, दो फैक्टर इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हियर द प्री ट्रेनिंग एंड द फाइन ट्यूनिंग। द प्री ट्रेनिंग क्या है? प्री ट्रेनिंग वो पार्ट है, क्या है, ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग फेज द चैट जीपीटी एक्सपोज द मैसिव एंड डाइवर्स डेटा सेट कलेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है ना। These data sets include the text from the articles, book, website and various sources. भाई जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो जो कंटेंट आ रहा है, एक डेटा सेट है, जो उस डेटा सेट से जो कंटेंट आ रहा है वो डेटा सेट क्या हो सकता है? डेटा सेट में भी द आर्टिकल्स, may be books, maybe website and various sources which is available on the internet. The model learned to predict the next word to the sentence, acquiring the understanding of the grammar, punctuation informations, reasoning ability, and the even some level of the common sense knowledge. This pertaining process equip the chat GPT with the broad foundational language and comprehension. तो ये क्या करता है? ये जो आपको प्री ट्रेनिंग है, प्री ट्रेनिंग क्या करता है? प्री ट्रेनिंग आपको एक सेंटेंसेस को बनाता है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को दूर करता है, बहुत सारी चीजों को एक तरफ से वो जो चैट जीपीटी को जिस तरह से ट्रेंड किया गया है वो सारी प्री ट्रेनिंग की कैटेगरी में आता है। द फाइन ट्यूनिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ द योर आर्टिकल, योर सेंटेंस, जो भी होता है। The following the pre-training, ChatGPT undergoes the fine tuning to enhance the performance your specific task domains. यानी जिस तरह से हम ChatGPT जब सर्च करते हैं, जो कंटेंट हमारे पास आता है, वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट जो हमें फाइनली प्रोवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड द फाइन ट्यूनिंग। इन द फेज द मॉडल इज trained on the more and targeted data set generated with the assistance of the human reviewer. ठीक है, these reviewers follow the guideline provided by the OpenAI, offering the rating of the model written response for the different example of age classes. Fine tuning help the narrow down to the model response and improve the sustainability in particular application. ठीक है, तो ये क्या होता है? There is a two part in the chat GPT. One is the pre-training and second is the fine tuning. ठीक है, another one is the another part of the chat GPT, how to chat GPT's work. The other part is जो हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे कि क्या क्लियर कर देंगे, there is the five responses of the chat GPT. वो क्या क्या responses है? क्या responses है? There is the 5 responses of the chat GPT. कौन सा है? पहला one is the क्या करता है? यूज इनपुट। जब कोई हम इसमें एक इनपुट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर रिटिंग इन द टेक्स्ट, वी आर रिटिंग द प्रॉम्प्ट, कोई क्वेश्चंस लिख रहा है, तो क्या यूजर इनपुट, तो हम लोग इसमें कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, प्री प्रोसेसिंग। तो जब लिखने के बाद क्या होता है? द सेकंड नंबर इज प्रो प्रोसेसिंग। तो क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग। तब ये वहां पर जाता है, जब हम उसको एंटर करते हैं तो वो क्या होता है? तो वो सर्च करता है आपसे रिलेटेड। तो उसके बाद नंबर 3 इज द मॉडल इंटरफेस। तो वो जब वो प्री प्रोसेसिंग करता है, आपके कंटेंट को तलाशता है, और कंटेंट को तलाशने के बाद क्या करता है? वो एक आर्किटेक्चर बनाता है। आर्किटेक्चर क्या बनाता है? एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाता है। ये नहीं कि आपने कोई हिस्ट्री पूछी तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे देते, वो नहीं। वो बल्कि मॉडल क्या करता है? इन्फ्रेंसिस करता है। द pre-proposed input is the feed of the into the ChatGPT 3.5 language model, which use the vast internet knowledge based on the predict most likely next word and sequence of the word. तो क्या करता है? sequence of the word होता है जो वो प्रोवाइड करता है। क्या करता है? sequence of the next is the sequence of the word प्रोवाइड करता है।
ठीक है। द अनदर वन ना रेस्पॉन्स जनरेटर, जब ये सीक्वेंस ऑफ द वर्ड कर देता है तो उसके बाद क्या होता है, द रेस्पॉन्स जनरेशन, वो आपके रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, यानी कि वो क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को रिटेन करता है, जो हम लोग देखेंगे अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना। Based on the model predictions, the chat GPT generate the response that the continue the conversation or answer your question in the coherent informative way. और the last one, the post processing. Post processing मतलब the चैट जीपीटी जनरेट योर रेस्पॉन्स, है ना, वो क्या कर देता है, आपके रेस्पॉन्स को जो आपके सामने ला देता है, वो क्या होता है, वो ग्रामर फ्री होता है, एकदम बड़े तरीके से, बड़े कायदे से, बड़े अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, वो एकदम रिफाइन होके, एकदम फिल्टर होके आपके स्क्रीन पर आ जाता है। तो दीज आर द मेन वर्क, जिस तरह से क्या होता है ना, these step provide a solid foundation, है ना, solid foundations of the chat GPT, user input, pre-processing, model inference, response generation and post the processing, the last क्या था, post processing, the last and final stage of the foundation of chat GPT। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हमने क्या समझ लिया, हमने चैट जीपीटी के बारे में समझ लिया। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि चैट जीपीटी एक की जो है ना हिस्ट्री क्या है, चैट जीपीटी कैसे एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से हुआ, कौन था, किसने इसको किया, क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया, वो सारी चीज थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक एक तरह से चैट बॉक्स है, ठीक है ना, प्री जनरेटेड ट्रांसफॉर्म है ये। तो ये क्या गया, एक ओपन एआई की कंपनी है, ठीक है, ओपन एआई एवोल्यूशन से, ये नहीं, ओपन एक एआई कंपनी है, जिस ओपन एआई कंपनी ने फाउंडेड 2005 2015 में इस ओपन एआई कंपनी स्टैब्लिश हुई, फाउंडेशन हुआ, और वहां पर 2015 में जॉर्ज ब्रॉकमैन, ठीक है, किसने, जॉर्ज ब्रॉकमैन, Elon Musk, Sam Altman, and the group of the entrepreneurs and researchers with the focus of advancing artificial intelligence and anticipating the impact of the society, emphasize the safety। तो किन लोगों ने, है ना, जॉर्ज ब्रॉकमैन ने, एलॉन मस्क को जानते, तो ये फिर क्या हो गया, बाद में ये लोग क्या हो गए, बाद में ये लोग थोड़ा सा इस कंपनी से अलग हो गए, ठीक है ना, इस कंपनी से अलग हो गए। लेकिन जो ये कंपनी थी, वो कंपनी क्या कर चुकी थी, ये कंपनी एक ऐसा रेवोल्यूशन ला चुकी थी इंडियन मार्केट में नहीं, ओवर द वर्ल्ड मार्केट में, जिसने एक एक तरह से क्या किया था, एक तरह से एक रेवोल्यूशन लाया था। वो रेवोल्यूशन क्या था, वो रेवोल्यूशन था जो भी टैक्स को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसने लिखना शुरू कर दिया और लोग यूज करने लगे, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी 2018 में इस कंपनी ने चैट जीपीटी वन के नाम से एक एप्लीकेशन जो हमें प्रोवाइड की। वो जो एप्लीकेशन क्या थी, ओपन एआई इंट्रोड्यूस द, इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी वन इन 2018 विद द 1.5 मिलियन पैरामीटर। तो जब क्या आता था उसमें क्या था, ओनली 1.5 बिलियन 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 क्या था, पैरामीटर था, ठीक है ना, इतना 1.5 मिलियन पैरामीटर था, तो इतना ज्यादा नहीं था वहां पर जो के फर्स्ट स्टेज। इट इज द ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल दैट द पायनियर द पैरामीटराइजेशन ऑफ द लैंग्वेज टास्क। तो उसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको की कि जो लैंग्वेजेस को था उसको फोकस किया। द अनदर वन इज द सेकंड वर्जन विल बी 2019 इन चैट जीपीटी 2, ठीक है। In 2019, OpenAI unveiled the ChatGPT-2 and the iterations that increase both the size and number of the parameters with the over the 1.5 million parameter. GPT-2 demonstrated over the improved capability in tasks such as the text generation। है तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने बाद में टेक्स्ट जनरेशन का, ट्रांसलेशन एंड क्राफ्टिंग, सोशल मीडिया पोस्ट को इसको बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसको बनाना शुरू कर दिया। अब द अनदर वन इज उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर आया ना चैट जीपीटी 3। चैट जीपीटी 3 ने क्या किया, चैट जीपीटी 3 तो चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी 3 ने 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ। चैट जीपीटी 3 इज द मोस्ट रेवोल्यूशनाइज द वर्जन ऑफ द ओपन एआई, ठीक है। तो चैट जीपीटी 3
The most prominent version and launched 2020 with the whooping 100. वहां पर क्या था, 1.5 मिलियन पैरामीटर था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर 175 बिलियन पैरामीटर्स बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, क्या आ गया, मोस्ट largest language models, and GPT-3 opened the door to applications in various fields, including education, content creation and more. फिर क्या हुआ, चैट जीपीटी में उन्होंने ये सारी चीजों को, एजुकेशन को भी इंक्लूड किया, कंटेंट क्रिएशंस को भी इंक्लूड किया, एंड मैरी मोर। और जब तक क्या हो गया था, 175 पैरामीटर का मतलब है कि 175 पैरामीटर इज द वेरी वास्ट ऑफ द सर्चिंग योर कंटेंट। सर्च कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत अच्छी तरीके से सर्च कर रहा है। द अनदर वन इज the chat gpt will introduce the 2002 and 2021 chat gpt use the friendly version derived from the chat gpt was introduced in the 2002, initially launched with the limited access in lab setting, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, it is become the available the general public in 2022। तो उन्होंने 2020 में इस चीज को जब इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 2021 में ये किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए यूज आया। उसके बाद क्या आया, इन 2022 द चैट जीपीटी लॉन्च द चैट जीपीटी 3.5 वर्जन। The OpenAI launched the ChatGPT as a free research review based on the ChatGPT 3.5, allowing the user interact with the language model conversion। ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। उसके बाद क्या है, 2023 में चैट जीपीटी प्लस अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये प्रीमियर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे इसको, सिखाएंगे, लेकिन हम भी यूज जो कौन सा कर रहे हैं, हम ये 3.5 जो वर्जन है वो अब 4.0 मिनी वर्जन के नाम से हो गया है। इसमें थोड़ा सा चैट जीपीटी ने क्या कर दिया है, चैट जीपीटी ने कुछ चीजों को लिमिटेशंस हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, 2003 2004 द ओपनएआई कंटिन्यूज टू इंप्रूव द, है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, वॉइस इंटरेक्शन है, कस्टम मॉडल्स है, और प्लान कोलैबोरेशन, बहुत सारी चीजों को ये क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है ना, उस चीजों पर काम कर रहा है। ये बहुत सारी चीजों पर ये क्या कर रहा है, द चैट जीपीटी इज वर्क फॉर द, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, चैट जीपीटी का एक हिस्ट्री समझ में आ गई, चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, चैट जीपीटी का वर्जन कौन कौन सा यूज हुआ है, कौन कौन सा वर्जन यूज हुआ है, यूज हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम, 2000 ये 2022 में, ठीक है ना। 2022 में क्या हो, नवंबर 2020 में इनिशियली रिलीज द चैट जीपीटी 3.4 टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शंस। 2000 फरवरी में, ठीक है, चैट जीपीटी प्लस विद द पोटेंशियल ऑफ द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। नवंबर 2023 में वॉइस इंटरेक्शंस एंड have become the available in all users. November 2023 में introduction the custom chat GPT model and chat GPT store featuring the partner developed by the AI tools, है ना, बहुत सारे AI tools को इनमें इंटीग्रेट कर दिया गया। जनवरी 2000 पर लॉन्च द चैट जीपीटी टीम प्लान टू द एडवांस मॉडल एंड कोलैबोरेट द फीचर। कोलैबोरेटिव फीचर जो अभी अवेलेबल है, हम इसमें देखेंगे क्या क्या कोलैबोरेटिव फीचर जो यूज हो रहा है वो क्या क्या है, वो हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अनदर वन इज द नवंबर 2021 फोकस, ठीक है, 2000 ये हो गया। द अनदर वन इज वी विल डिस्कस हियर कि मेन इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर क्या है, वो हाउ टू जनरेट द टीचिंग मटेरियल। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब भी हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग द चैट जीपीटी, the problem is we are facing the problem how to generate the teaching material for our subject. That is very important. So now we will discuss in 2 and 3 slides कि how we can generate the teaching material from the chat GPT, है ना। वो कैसे होगा क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि आपके पास जनरेटिंग द लेसन प्लान, ठीक है ना, कोई लेसन प्लान को जनरेट करना है। तो जब लेसन प्लान को जनरेट करना तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, डिफाइन द लर्निंग ऑब्जेक्ट, कि आपकी लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियरली आउटलाइन व्हाट डू यू वांट टू स्टूडेंट लर्निंग एंड ऑफ द लेसन।
ठीक है, वो चीज हमें समझना पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद डिफाइन, हमें क्या करना है, डिफाइन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। द नंबर 2 इज द प्रोवाइड द टॉपिक एंड स्कोप। हमें बताना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्या है। शेयर द सब्जेक्ट और टॉपिक टू एनी स्पेसिफाइड सब टॉपिक एंड यू वांट टू कवर। ठीक है, वो चीज हमें कहना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यूज द प्रॉम्प्ट टू जनरेट द कंटेंट। फिर हमें उसका एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट फॉर लाइक द प्रॉम्प्ट का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल क्रिएट ए लेसन प्लान फॉर द 60-minute क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ photosynthesis for the high school biology, include the objective key पॉइंट्स एंड एक्टिविटीज एंड असेसमेंट मेथड। तो इस तरह का एक प्रॉम्प्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा और इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमें चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी कैन जनरेट द स्ट्रक्चर लेसन प्लान विद द एन इंट्रोडक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, कंटेंट एंड एक्टिविटी ऑफ द कंक्लूजन। तो वो क्या कर देगा, चैट जीपीटी विल प्रोवाइड द ईच एंड एवरीथिंग विच एवर यू हैव द मेंशन इन योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, रिफाइन एंड कस्टमाइज। तो आपको क्या करना है, आपका क्या काम है, जब कोई कंटेंट आपके पास आता है तो उस कंटेंट को क्या करना है, उस कंटेंट को रिव्यू द जनरेटेड लेसन प्लान एंड एडजस्ट इट ऑन द फिट ऑफ स्पेसिफाइड नीड और टीचिंग स्टाइल। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको उसे कस्टमाइज करना है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग लेसन को एक तरह से हम लोग जनरेट करा सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल हम लोग बाद में बताएंगे जो लास्ट में। ठीक है, अनदर बात क्रिएटिंग क्यूज। जिस तरह से हम लेसन प्लान को क्रिएट कर सकते हैं उसी तरह से हम क्यूज को भी क्रिएट करा सकते हैं। क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर भी हमें डिफाइन द क्यूज के क्या करना है, प्रोवाइड द टॉपिक, यूज द प्रॉम्प्ट और रिव्यू द एडिट। उसको भी रिव्यू और एडिट करना पड़ेगा, तभी हम जाकर ये बता देते। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट द 10 क्वेश्चन द मल्टीपल चॉइस क्यूज ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर द 9th ग्रेड हिस्ट्री स्टूडेंट। 9th ग्रेड का मतलब कोई भी ग्रेड हो सकता है। इट मे बी फॉर द ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, है ना, 12th लेवल, जो भी जहां से आप कंसर्न है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम क्रिएट द क्यूजेस के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, द अनदर वन इज द डेवलपिंग द टीचिंग मटेरियल। अब जो टीचिंग मटेरियल कैसे हम लोग यहाँ पर सर्च कर पाएंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे डेवलप कर पाएंगे, तो वहां पर क्या करना है, वहां पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन द टाइप ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जिस मटेरियल को हमें चाहिए, कौन सा चाहिए, प्रेजेंटेशंस चाहिए, हैंडआउट चाहिए और वर्कशीट चाहिए। उसके बाद क्या होगा, गिव द डिटेल अबाउट द कंटेंट के बारे में करना पड़ेगी। और फिर हमें उसके बाद ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि डिक्राइब द डिटेल ऑफ द हैंडआउट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ द हाई स्कूल बायोलॉजी क्लास इंक्लूडिंग द डेफिनेशन, प्रोसेस एंड डायग्राम, जो भी हम चाहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फाइनलाइज करना पड़ेगा। वही फॉर्मेट, एक ही चीज उसी तरह से हम लोग को इसमें डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, द अनदर वन इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द, किस चीज का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, वेरियस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये कि इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट में कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे, राइटिंग का असिस्टेंट, ग्रामर एंड स्टाइल, वो सारी चीजों को कवर करता है। ठीक है ना, अभी हम प्रैक्टिकल को इसको हिस्ट्री में अगर आप करेंगे तो हिस्ट्री में भी ये सारी चीजों को कवर करता है। जो भी अगर आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें भी हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रॉम्प्ट के जरिए अपने कंटेंट को ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, साइंस के सब्जेक्ट हो तो प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, है ना, वो सारी चीजें हमें, सोशल स्टडीज हो या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, उसके बाद कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन we can ask the chat gpt how we can जो chat gpt will provide you the each and everything which you have to need। ठीक है ना, तो अब क्या है, अब हम आते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस ऑफ चैट जीपीटी। अब हमने ये इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, उसके बारे में फिर क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बारे में खत्म होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन चैट जीपीटी के साथ साथ वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द जेमिनी एआई, द अनदर एआई टूल्स ऑफ द गूगल। है ना, गूगल का जो एक दूसरा एआई टूल्स है, वो कौन सा एआई टूल्स है, वो है जेमिनी आई। तो हम पहले समझ लेते हैं जो हमने प्रॉम्प्ट डिस्कस किए हैं, उन प्रॉम्प्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वो प्रॉम्प्ट कैसे काम करते हैं और चैट जीपीटी कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ से चैट जीपीटी खोला, और चैट जीपीटी, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द चैट जीपीटी, और हर कोई चैट जीपीटी के बारे में जानता है, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, चैट जीपीटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और चैट जीपीटी के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं तो शुरू शुरू से क्या लॉगिन करना, लॉगिन कैसा होता है इसमें, लॉगिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लॉगिन बहुत इनिशियल ही है, आप अपना ईमेल आईडी डालिए, अपना फोन नंबर डालिए और लॉगिन, ये चैट जीपीटी लॉगिन हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर जिन लोगों को नहीं आता है तो मैं शुरू से बताऊं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इट। आप बताइए, अगर आपको शुरू से सीखना है या फिर यहीं से इट इज ओके। इट इज ओके यार, बता दीजिए सर, है, शुरू से बता 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 दीजिए, शुरू से बता। ओके। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इसको लॉग आउट किया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर किसी भी मतलब जैसे हम गूगल पे गए, गूगल पे हमने कहा चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, हमने जब लिखा चैट जीपीटी, तो उसका chatgpt.com पूरा वेबसाइट है, chatgpt.com पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक तरह से ये मतलब इंटरफेस खुल के आ गया। ये जो इसलिए आ गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा अगर आपको क्रिएट करना चाहिए, या फिर आपके पास कोई गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर एप्पल अकाउंट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे पास जीमेल का अकाउंट है, तो जीमेल के अकाउंट में क्रिएट विद द जीमेल, क्रिएट विद द जीमेल आप करेंगे तो ये इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, और उससे ये पूछेगा कि आपके पास कौन सा जीमेल यूज करना चाहते हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है। तो आपने जो भी जीमेल को यूज करना है वो जीमेल को यहाँ पर यूज कर लेना है, और यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, चैट जीपीटी विल बी द ओपन, है ना। लेकिन आप इसमें एक चीज थोड़ा सा ये चीज नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें लॉगिन है, जो मेरा यहाँ पर आपको एक एक ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। वो ऑथेंटिकेशन कैसा होगा, आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वो मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है तो इसलिए वो इस चीज को नहीं पूछ रहा। लेकिन जब आप नए लॉगिन, जब इफ यू आर द न्यू पर्सन एंड यू लॉग इन इट, तो जब आपको लॉगिन करेंगे तो वो क्या करेगा, इसमें एक छोटी सी चीज और वो है, आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन या ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन पूछेगा। उसके बाद आप इस तरह का एक इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए चैट जीपीटी के बारे में हमने जो आपके डिस्कस किया, तो ये जो चैट जीपीटी के बारे में अभी हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो पहले 1 साल 5-6 महीने पहले ना, तो चैट जीपीटी में ना, ये चैट जीपीटी जो थी ना, चैट जीपीटी ओनली यहाँ पर 3.5 चैट जीपीटी थी। लेकिन अब चैट जीपीटी क्या आ रहा है, अब चैट जीपीटी यहाँ पर चैट जीपीटी 4.4 मिनी करके एक ये हमें उसने प्रोवाइड कर दिया। वो इसमें क्या प्रोवाइड किया उसने, इसमें ये प्रोवाइड किया है कि कुछ कंटेंट को हम एज ए प्रीमियर, जो चैट प्लस का जो है ना, चैट प्लस एज ए यूज कर सकते हैं ना, तो उसमें कुछ लिमिटेशन, उसके बाद फिर वही कहेगा नहीं नहीं आपका जो लिमिटेशन है फ्री वाली वो खत्म हो चुकी है। अब फ्री में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो अभी जो हमने पढ़ा कि जो चैट जीपीटी ने क्या किया है, बेसिकली चैट जीपीटी इंटीग्रेट द लॉट ऑफ द जो बहुत सारी मतलब एआई टूल्स है, उनसे भी इंटीग्रेट कर लिया है और उनकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चैट जी जितनी भी जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितनी भी आपको ये जितनी भी यहाँ पर जो शो ऑफ हो रही है, ठीक है, इतनी भी यहाँ पर आपको ये जो आपको जो एआई टूल्स जो शो हो रहे हैं, तो ये एआई टूल क्या है, ये एआई टूल बेसिकली, ये एआई टूल क्या है, बेसिकली वही चीज है जो जो क्या किया है, जो उसने देखिए फॉर एग्जांपल ये है ना, ये सब इसने क्या कर दिया है, चैट जीपीटी ने इन एआई टूल्स को इंटीग्रेट के बहुत सारे एआई टूल, जब सी ऑफ पे करेंगे तो आपको बहुत सारे एआई टूल्स नजर आएंगे, बहुत सारे एआई टूल देखिए, बहुत सारे एआई टूल्स नजर आएंगे, जितने भी बहुत सारे एआई, राइटिंग का अलग है, प्रोडक्टिविटी देखिए, ये उसने फीचर्स है, मार्केटिंग रिसर्च है, कोड ट्यूटर है, साइज स्पेस है, राइटिंग असिस्टेंट है ना, इमेज जनरेटर है, राइट तो फोर है, स्कॉलर है,
कैनवा है, लोगो है, क्रिएटर है ना, बाई चैट जीपीटी, डेल है, डेटा एनालिसिस है, बहुत सारे आपके पास राइटिंग को लेके स्पेसिफाइड टूल्स दिए हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स दिए हैं, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस टूल्स दिए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टूल दिए, राइट है, यूनिवर्सल प्राइमर है, वीडियो समराइजर है, कोड ट्यूटर है, ट्यूटर में समराइज यूट्यूब पीडीएफ, आर्टिकल वेब टेक्स्ट है, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी विद द चैट जीपीटी है, ये सारी चीजें, सारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग का कोड पायलट, पाइथन, जेनीमोर, वेबसाइट जनरेटर, एसक्यूएल एक्सपर्ट, है ना, ये बहुत सारे जो टूल्स को ना चैट जीपीटी ने इंटीग्रेट कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि वो चैट जीपीटी का ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन ये जो फीचर्स है, बेसिकली ये फीचर्स आपको सारे फीचर विल बी प्रोवाइड द चैट जीपीटी इन द प्लस, यानी जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन से उसमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। देखिए टॉप राइटिंग से, है ना, यहाँ पर ये तो पूरा दे रखा है ना, राइटिंग से, प्रोडक्टिविटी है, रिसर्च एनालिसिस है, एजुकेशन है, लाइफ स्टाइल है, प्रोग्राम, एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन में क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ द एआई टूल्स इज हियर, ठीक है ना। तो कौन कौन से देखिए, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, ये सारे देखिए, ट्यूटर में, ठीक है, ये सारे बहुत सारे जो भी यहाँ पर डायग्राम, है ना, मैथ सॉल्वर, है ना, बहुत सारे जो भी यहाँ पर सारे दे रखे, सारी चीज दे रखी, ये मैथ का है, म्यूजिक मेकर है, सब चीज दे रखी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम एक चैट जीपीटी का यूज करते हैं। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी का यूज फ्री वाला यूज कर रहे हैं, फ्री वाला यूज भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारी चीज हो गई, इसके अलावा हमने, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से, हम लोग चैट जीपीटी वाले, अब चैट जीपीटी से क्या करते हैं। तो सबसे पहला हमने जो अभी डिस्कशन किया था, वो हमने डिस्कशन किया था कि हम चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी से ही पूछ लेंगे कि चैट जीपीटी हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है एज ए टीचिंग असिस्टेंट। काइंडली टेल मी हाउ कैन चैट जीपीटी provide help as a teaching। ठीक है, तो हमने पूछा, तो अब ये चैट चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, अब चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपको वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो बस एक एज जनरल इंफॉर्मेशन वी आर यूजिंग द दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी आपको बता दे रहा है कि वो क्या कर सकता है, कंटेंट एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशंस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ठीक है ना, ठीक है, क्रिएटिंग स्टडी मटेरियल को क्रिएट कर सकता है, फीडबैक एंड राइटिंग असिस्टेंट वो भी प्रोवाइड कर सकता है, प्लेजरिज्म चेक भी कर सकता है, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन सपोर्ट कर सकता है, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सकता है, असेसमेंट एंड क्यूजेस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना, स्टडी प्लानिंग एंड मोटिवेशन यूज कर सकता है, सपोर्ट एजुकेटर प्रोवाइड कर सकता है, और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। तो उसने 9 पॉइंट्स आपने दे दिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था, वी हैव डिस्कस हियर, अब हमने कहा कि एक लेसन प्लान के लिए हम डिस्कशन किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हमने कहा कि ठीक है, हमने यहाँ से ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से क्या कर लिया, ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से कॉपी किया, प्रॉम्प्ट आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट आप कोई भी लिख सकते हो। तो वो कहाँ गया, ठीक है। तो हमने प्रॉम्प्ट हमने कहा उससे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने चैट जीपीटी से कहा क्रिएट ए लेसन प्लान फॉर द 60 मिनट क्लास ऑन द टॉपिक, टॉपिक क्या होना चाहिए, टॉपिक हमारा कोई भी होना चाहिए, हमने फॉर लिख दिया, टॉपिक को हमने लिख दिया, कोई टॉपिक अपना सजेस्ट कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट काइंडली सजेस्ट द एनी टॉपिक, कोई टॉपिक आप लोग सजेस्ट किए, उस टॉपिक पे हम लोग करते हैं, ठीक है। और क्लास भी मेंशन कर लीजिएगा, इन विच क्लास, ठीक है, कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए प्लीज,
काइंडली सजेस्ट एनी टॉपिक फॉर द दिस प्रॉम्प्ट। कोई भी टॉपिक जो आपका टॉपिक होगा वो सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक कर दीजिए, कीजिए ना यार, आप लोग तो इतना वो कर रहे हैं, जल्दी कीजिएगा फटाफट। हरी अब, किसी का नहीं आया अभी तक। टाइप एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लासरूम में आपको क्या करना है ना, क्रिएट ए लेसन प्लान क्रिएट करना है किसी भी टॉपिक पे। आप कोई लेसन प्लान के लिए कोई भी टॉपिक आपके माइंड में हो वो सजेस्ट कीजिए जल्दी से फटाफट। ओके, सजेस्ट एनी टॉपिक, काइंडली सजेस्ट एनी टॉपिक। कोई टॉपिक नहीं है किसी के पास? हाँ, संबंध आइडिया बड़ी मेहनत से अब, अच्छा अच्छा अब आने लगा। अब सपोज दैट अब सीई ने एक टॉपिक दिया, हेलीकॉप्टर पॉल्यू, इसको भी लेंगे, अभी ना अभी लेते हैं। इन्वायरमेंट को लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हमने इससे ये कहा कि जो हमने एक टॉपिक जो आया, वो टॉपिक आया इन्वायरमेंट। क्या टॉपिक आया? वो टॉपिक आया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक टॉपिक आ गया हमारे पास, ठीक है ना। इन्वायरमेंट क्या टॉपिक आ गया। अब हमने कहा क्रिएट अ लेसन फ्रॉम द 60 मिनट क्लास ऑन द टॉपिक इन्वायरमेंट फॉर द, फॉर नॉट द हाई स्कूल बायोलॉजी ना, फॉर द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना, या ग्रेजुएशन। देखो, इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव की पॉइंट असेसमेंट मेथड। तो अब हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, ग्रेजुएशन आ गया ना। अब हमने एक ये प्रॉम्प्ट दिया। अब हमने प्रॉम्प्ट किया, चैट जीपीटी से पूछा क्रिएट ए लेसन प्लान फॉर द 60 मिनट प्लान ऑन द टॉपिक द एनवायरमेंट फॉर द ग्रेजुएशन लेवल, इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव की पॉइंट्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट मेथड, ठीक है ना। तो अब हमने ये सारी चीजें पूछ ली। जब ये सारी चीजें पूछ ली, तो पूछने के बाद तो देखो चैट जीपीटी अब आपको क्या कर रहा है। चैट जीपीटी देखो एकदम पलक झपकते ही आपको, देखिए कमाल, देखिए चैट जीपीटी क्या करेगा। चैट जीपीटी गिव यू द पूरा क्या कर देगा, एक एक चीज को आपको क्रिएट कर देगा, जो आप बहुत सारे एक घंटों में, बहुत सारे मिनट्स में, बहुत सारा दिमाग लगा के इस चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो और इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या कर दिया चैट जीपीटी आपका, जस्ट अ सेकेंड, पलक झपकते ही पूरे लेसन प्लान को क्रिएट कर देगा। और ये पूरा आइडेंटिफाई कर देगा कि कौन कौन सा किस किस टॉपिक को कितना टाइम आपको देना है, ठीक है, कितना टाइम देना है। तो ये सारा टाइम देखिए, आपको पूरा देखिए असेसमेंट मेथड के बारे में बता दिया, पूरा जो भी आपने वहां पूछा वो सारी चीज के बारे में वो चैट जीपीटी ने एक लेसन प्लान आपका तैयार करके दे दिया। द चैट जीपीटी हैज प्रिपेयर्ड द लेसन प्लान, इंटायर लेसन प्लान, देयर हैज द ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पर क्या है, ये ईच एंड एवरीथिंग कोई कौन सी चीज थी, हमने पूछा कि लेसन प्लान ऑन एनवायरनमेंट पर, तो हमने किया था लेवल क्या है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल है, स्टडी इन्वायरमेंट साइंस है, और ड्यूरेशन है 60 मिनट, इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट चैलेंज एंड सॉल्यूशन। टॉपिक भी उसने प्रोवाइड कर दिया। हमने सिर्फ क्या डाला था, हमने यहाँ पर टॉपिक डाला था इन्वायरमेंट, लेकिन उसने क्या था, इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट चैलेंज एंड सॉल्यूशंस। यू कैन इंसर्ट हियर द, आपका जो भी पूरा टाइटल है वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने अपने हिसाब से चैट जीपीटी ने एक आपको पूरा क्या करके दे दिया, आपको यहाँ पर ये क्या पूछ रही है मैडम, क्रिएट ए लेसन इन द पीपीटी ऑन द टॉपिक्स ऑफ द लेसन इन पीपीटी भी बनाएंगे हम, पीपीटी के लिए अभी आपको बता देंगे, ठीक है ना। पीपीटी के अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो भी हम यूज कर लेंगे आज या कल, ठीक है ना। वो इस पे कर सकते हैं, लेकिन इस पे स्लाइड्स क्रिएट नहीं करा। स्लाइड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ना वो लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो हम जेमनी एआई, ये जेमनी एआई पे और दूसरे बहुत सारे एआई टूल है, उन पर हम लोग आपका, ठीक है ना, क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, उस पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। पीपीटी उस पर क्रिएट करेंगे, पहले हम लोग ये समझ रही। तो अब ये क्या करते हैं, लेसन प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिया। अब लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर दिया। तो बाय द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल एबल टू, अब क्या सीखेंगे, जो उन्होंने कहा कि जो लेसन है, जो लेसन प्लान आपने किया है, ऑन लेसन प्लान के बाद जो आपके जो स्टूडेंट्स है वो क्या 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 लर्न करेंगे, द स्टूडेंट विल बी लर्न द अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड
component, identify the major environment challenges faced the globally, discuss the solutions or environment issues, analyze the role of the individual governments and organizations, the environmental conservations. ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा की पॉइंट ऑफ द कवर, की पॉइंट्स क्या है ना, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट 10 मिनट्स, ठीक है, डेफिनेशंस, नेचुरल में जो भी आपका पूरा इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आपको ये पढ़ाना है। मेजर इन्वायरमेंट चैलेंजेस 15 मिनट, इन्होंने पूरा पूरा बता दिया कि आप अब ये पढ़ा सकते हैं। उसके बाद द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द मिटिगेशन स्ट्रेटजी 15 मिनट्स, ठीक है ना। उसके बाद द 10 मिनट से क्या है, role of the individual and society, reducing carbon footprint, energy deficiency, water and conservation, awareness and activism, environment and NGO, grassroots movement, सस्टेनेबल, ये पूरी चीज के बारे में क्या कर दिया, ये आपको 4 पॉइंट बता दिया। और 4 पॉइंट का टाइम कितना है, 4 पॉइंट का टाइम 15, 20 और पूरा 60 मिनट का टाइम हो गया, ठीक है ना। मतलब एक पीरियड का टाइम हो गया। उसके बाद क्या, क्लासरूम एक्टिविटी, इस पे उन्होंने कहा कि क्लासरूम एक्टिविटीज क्या कर सकती है। इसके अलावा क्या उन्होंने कहा, वार्म अप द डिस्कशन, 5 मिनट डिस्कशन करना है। being the asking the student what do you understand by the term environment and why it is the important for the protect it, the encourage the critical thinking tone of the lesson, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ग्रुप एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में, डिवाइड द क्लास इनटू द स्मॉल ग्रुप, 3 student, each group will be the assign the environment challenges, either climate change, pollution and deforestations, ठीक है। Student will be discussed about the causes, effect and possible solution of the assigned challenges. A spokesperson from the each group will be the present their finding to the class, ठीक है। तो ये पूरा, और दूसरी चीज केस स्टडी ऑफ द डिस्कशंस 10 मिनट, the present the case study of the successful environment initiative, either clean energy project, ठीक है, strategy जो भी चीजें, as the student to analyze the factor that is the success and the similar strategy could be applied the elsewhere, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या, असेसमेंट मेथड। अब असेसमेंट क्या क्या है, क्लास पार्टिसिपेंट असेसमेंट मेथड्स क्या है, class participant formative, evaluate the student, the engagement in the warm of the discussion of the group activity, focus on the quality and contributions, and ability to think the critical about the environmental challenges, group presentations, ठीक है, क्लास पार्टिसिपेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड पोस्ट लेसन क्यूज, है ना, समराइज, ठीक है। एंड ऑफ द क्लास विद द शॉर्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस क्यूज, मल्टीपल चॉइस ऑफ द शॉर्ट आंसर टू एक्सेस द कॉम्प्रिहेंसिव द की पॉइंट, ठीक है ना। उन्होंने पूछ लेगा व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, नेम 2 causes of the climate changes, define the biodiversity, what is the circular and economy, and the name of the international environment agreement it is purposes, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होमवर्क एंड होम वर्क असाइनमेंट दे दिया, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है, आप इस पर क्या करना है, आपको 30 वर्ड्स का होम होम क्या करना, होमवर्क असाइनमेंट लगता है। रोल ऑफ द यूथ ऑफ द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, दिस विल बी सबमिटेड इन द नेक्स्ट क्लास, ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द रिसर्च इनसाइड द प्रैक्टिकल सजेशन, ठीक है। उसके बाद मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है वो पूरा बता दिया, प्रायोरिटी ऑफ द सॉलिड्स है, व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर है, प्रिंटर क्यूज है, और कंक्लूजन द लास्ट वन इज द 5 मिनट इज द will the conclusion, summarize the key point covered to the lesson and encourage the student to the reflect of the their individual responsibility and conservation of the environment, है ना। provide the resources for the further reading, है ना। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इस पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये सारा टॉपिक है, अब आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि प्रोवाइड द रिसोर्स फर्दर रीडिंग टू एनवायरनमेंट। आपने ये यहाँ पर ये इसको कॉपी किया या आपने लिखा यहाँ पर, है ना, ठीक है। फर्दर रिसोर्स, प्रोवाइड मी रिसोर्स फॉर द फर्दर रीडिंग एनवायरनमेंट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, इट मे बी या सजेस्ट मी सम बुक्स, आर्टिकल्स एंड, ठीक है, सम बुक्स, आर्टिकल्स एंड, और आर्टिकल्स ये क्या, वेब, तो
अब ये क्या कर देगा, आपको वो सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं ना वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो अब ये क्या कर देगा, देखिए बुक्स के बारे में बता दिया कि बुक्स कौन सी है, साइलेंट स्प्रिंग बाय द रोचेल कार्डमैन, 16 चीजें, और ये पूरी सारी बुक्स के बारे में आपको बता दिया, बुक्स की एक लिस्ट आपको दे दी। ठीक है, ये बुक्स की लिस्ट दे दी आपको। अभी आर्टिकल की लिस्ट दे दी आपको, आर्टिकल बता दिया कि यू मे गो टू दिस आर्टिकल, है ना, इन आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं। इन आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, ये जो आर्टिकल की लिस्ट है उसको कोर्स पढ़ दो, और इससे रेफरेंसेस आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर दो। ये रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी, नेशनल ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नॉलेज, ये सारी चीजों के बारे में उसने क्या कर दिया, क्लाइमेट एक्शंस, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ठीक है ना, अब ये चीज बता दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब ये सारी चीज जान ली, अब हम ये पूछते हैं, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो हमें कि हम इसमें ना स्लाइड्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे उसकी, लेकिन हम वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंट, जैसे कि जनरेट एवं टॉपिक। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, तो ये क्या कर देगा, पीपीटी क्रिएट कर, हो सकता है कि इसमें से थोड़ा सा वो हमें ये प्रोवाइड कर दे के भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्री वर्जन है, तो हो सकता है वो हमें स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दे। इस भी टेक द सम टाइम नो एनालाइजिंग। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, देखिए एक हमें यहाँ पर श्योर बिलो द सजेस्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आउटलाइन फॉर द 60 मिनट क्लास ऑफ द टॉपिक इन्वायरमेंट। तो उसने क्या कर दिया, स्लाइड 1 में क्या करना है, आपको टाइटल लिखना है, सब टाइटल लिखना है, नैब लिखना है। उसके बाद क्या ना, स्लाइड 2 में आउटलाइन लिखना है, सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरमेंट लिखना है, पूरा स्लाइड 3 है ना, बायोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, प्लांट एनिमल एनोबायोटिक ये पूरा, ये क्या कर दिया, एक हमें उसने एक क्या कर दिया, एक पूरा हमें सेक्शन सेक्शन 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस, है ना, जो हमने ऊपर टॉपिक किया था उस पर एक उसने पीपीटी क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस सोर्सेज ऑफ फर्दर रीडिंग, बुक्स वगैरह ये सारी चीजों को उसने, हाँ, नोट्स एंड प्रेजेंटेशन है, मल्टीमीडिया एडिशनल टिप्स, सारी चीजें उसने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अगर ये हमारे पास प्लस होता ना, तो वो स्लाइड भी, इसमें फोटो भी हमें बनाकर दे सकता था, है? ये फोटो भी, पूरे फोटो इसके साथ एक स्लाइड्स बना के हमें दे सकता है। वो दूसरी हम लोग दूसरे बहुत सारे टूल्स हैं ना, कैनवा या फिर स्लाइड गो, है ना, स्लाइड गो है, बहुत सारे टूल्स है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशंस कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज हम चैट जीपीटी पे फोकस करते हैं ना, है ना, तो इस पर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अलावा आप ये चाह रहे हो, इसके अलावा ये आप चाह रहे हो, ठीक है, एक ही पूरे स्लाइड पर आपको पूरा जो भी आपका प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं आप उससे रिलेटेड, वो सारी चीजों को आपको प्रोवाइड। तो आप देखिए, इसने एक रिकमेंडेशन और उन्होंने कहा कि ये दो दो आपके ना, आई प्रेफर दिस रेस्पॉन्स। उसने कहा ये रेस्पॉन्स अच्छा है। यहाँ पर दूसरा रेस्पॉन्स क्या हो गया, दूसरा रेस्पॉन्स क्या कर दिया उसने, आई प्रेफर दिस, ये दूसरा, ये क्या कर दिया यहाँ पर, आई हैव द क्रिएटिव पावर प्रेजेंट टू द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट। देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, इसकी इसकी पीपीटी क्रिएट कर दी। देखिए पीपीटी क्रिएट कर दी। अब ये एक्चुअली मेरे उसमें खुलेगा नहीं, ये खुलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पावर पॉइंट नहीं है, पावर पॉइंट इसमें नहीं है। लेकिन जो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ना किस पे, आप अपने लैपटॉप पे ना, आपके पास जो पावर पॉइंट का जो सब्सक्रिप्शन है ना, उस पावर पॉइंट के सब्सक्रिप्शन पे क्या कर सकते हैं आप, इसको इसको यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको ग्रुप पर मैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ,
अब देखिए हमने क्या किया था, वो किया था तो हमने रीड मोड पर कर दिया। तो रीड मोड पर क्या किया, इसने क्या किया, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके दे दिया पूरा। ठीक है, पूरा प्रेजेंटेशन हमें पावर पॉइंट में क्रिएट कर, दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा? ठीक है, तो आपने पावर पॉइंट में क्या कर दिया आपने, आप पावर पॉइंट में हमारा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा इसको। वो दिख इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि इसको मुझे शेयर करना पड़ेगा। ये कहाँ पर है? ठीक है, तो इस तरह का देखिए, एक यहाँ पर क्या हो गया, एक यहाँ पर उसने पीपीटी तैयार करके दे दिया आपको। ठीक है ना? लेकिन अब ये पीपीटी क्या करके दिया उसने, पीपीटी बहुत सिंपल सा तैयार करके दे दिया। ठीक है, पीपीटी तो तैयार कर दिया चैट जीपीटी ने, स्लाइड भी दे दिए, लेकिन बहुत सिंपल तैयार कर दिया। ठीक है ना? अब सिंपल तो आपको नहीं, इसमें बहुत सारी चीज को आप मैन्युअली आप कर सकते हैं, मैन्युअली क्या कर सकते हैं, इसमें फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है जो आपकी पीपीटी को एकदम मतलब जिस तरह से पीपीटी की तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको आज ही मैं बता दूं, इसको है आज ही बता, चलो आज, अच्छा आज ही बता देता हूँ मैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर अगर एक कोई टूल्स है, इसका नाम है इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टॉप। स्टॉप करने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमारा जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम किसके बारे में, चैट जीपीटी हमारा यह है। चैट जीपीटी के बाद डिस्कशन, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक, हमारे पास एक एआई टूल है जिसका नाम है कैनवा। कैनवा के बारे में बहुत से लोग जानते हो, कैनवा से हम क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो कैनवा में बहुत सारे ऑप्शन है। कैनवा में एक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास ये प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे गए और प्रेजेंटेशन पे जाकर हमने वो जो हमारे पास टॉपिक था, जिस टॉपिक के बारे में कह रही थी मैम, ठीक है ना, कि टॉपिक, ठीक है। अब ये क्या है, हाँ अब ये हमने यहाँ पर जैसे देखा, यहाँ पर हमने एक क्या, एक टॉपिक डाला। वो टॉपिक क्या था, वो टॉपिक ये था जिसके बारे में हम लोग, रिकमेंडेशन पॉलिसी, हटिए हटाइए, हमने यहाँ से, हमने इससे कहा, हमने इससे कहा कि ये जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दें। ठीक है ना? तो हमने यहाँ से जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमने यहाँ पर ये टॉपिक डाला और टॉपिक पे क्या कर दिया, टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना? आप प्रेजेंटेशन, इसके लिए हमें दूसरे बहुत सारे है ना, बहुत सारे जो एआई टूल्स है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने किया, यहाँ पर हमारे पास 10 जो 10 मतलब क्या है, प्रेजेंटेशंस के डिजाइन क्रिएट हो गया होगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये डिजाइन आ गया। इस डिजाइन ने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पर किया, तो ये डिजाइन ने क्या कर दिया, प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया। अंडरस्टैंडिंग अवर इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुडे, पूरा ये जो भी आपका, ठीक है ना, इसके बारे में दे दिया, इसके बारे में क्रिएट करके दे दिया। ये पूरा ग्रीन प्रैक्टिक टुडे, इसके बारे में पूरा 5-7 स्लाइड दे दिया, और आप चाहें इससे स्लाइड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने अब दूसरा लिया। दूसरा क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास है, और हमने यहाँ पर इसको दूसरा वाला हमने पीपीटी ले लिया। ठीक है, तो दूसरा सस्टेन फ्यूचर्स ये वगैरह दूसरा पीपीटी हमारे पास आ गया। ठीक है ना? दूसरा पीपीटी हमारे पास ये बन गया। ठीक है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ लार्ज स्क्रीन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरह का, ये इस तरह का पीपीटी हमारे पास क्या हो गया, इस तरह का पीपीटी हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह का उसने पीपीटी आपको बना दिया। ठीक है, बिना किसी मतलब आपको फोटो इंसर्ट किए हुए, कोई फॉर्मेट किए, 1 मिनट में आपको क्या कर दिया, पूरा पीपीटी का फॉर्मेट आपको क्रिएट कर दिया विद फोटो सारी चीजों के साथ। ठीक है ना? इसके अलावा और बहुत सारे जो पीपीटी यहाँ पर क्रिएट हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पीपीटी क्रिएट हुआ। ठीक है ना? इसमें भी सात सात क्या है, सेविंग्स यानी ना, ठीक है, ये पीपीटी क्रिएट हो गया। ठीक है ना? ये पीपीटी अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया, है ना? ये देखिए पूरा इस तरह से कितना अच्छी तरीके से आपको पीपीटी तैयार करके दे दिया, बिना किसी आपके मेहनत के, ना, जस्ट ए सेकंड ये आपको सारे पीपीटीज क्रिएट करके दे दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो एआई टूल्स है वहां पर जाके अपने जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको आप टूल्स को
उसके टूल से आपको मतलब पीपीटी क्रिएट कर सकते, चाहे वो आप मैनुअली इंसर्ट कर लें या फिर आप इससे। लेकिन जब ऑटोमेटिक जब हम लोग जब एआई का यूज करते हैं इसको क्रिएट करने में, तो ये 5-6 ज्यादा 5-6 बस 5-6 और एक दो और है वो ज्यादा कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग कल करेंगे। ठीक है, एक दो टूल से वो ज्यादा स्लाइड क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सारे पैसे वाले स्लाइड्स है। ठीक है ना, स्लाइड से। हाँ जी मैम, बताइए बताइए अलबीना। सर ये वो कैनवा क्या वो परचेजेबल है या वो नहीं, इसका इसमें कुछ जो मैम है वो एक्चुअली क्या देखिए बना। कुछ पार्ट में फ्री है, कुछ पार्ट पैसों का है। तो आप फ्री वाला यूज कीजिए, लेकिन इसमें इसमें फ्री वाले बहुत सारे टूल्स हैं मैम, और उन टूल की सारी लिस्ट में कल आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप जो आपको कंफर्टेबल हो वो यूज कर लीजिएगा। और एक दो और टूल्स के बारे में कल हम, एक्चुअली ये वाले टूल्स को मुझे कल बताने का था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए फिर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है ना, तो अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग चैट जीपीटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो चैट जीपीटी के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, चैट जीपीटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन कर रहे थे चैट जीपीटी के बारे में, हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी से अपने प्लान को क्रिएट कर सकते हैं ना। प्लान के अलावा हम सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या किया है, इस यहाँ पर बहुत लेंथी, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कम 15 स्लाइड के ना, 18, 20, 21 और 22, 23, अरे 23, 24 स्लाइड्स को उन्होंने क्या कर दिया है, 24 स्लाइड्स का पीपीटी क्रिएट करके दे दिया है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे पीपीटी के जो सॉफ्टवेयर है उस पर जाके या कैनवा पे जाके, यहाँ से आपने कॉपी किया, स्लाइड 1 को कॉपी किया, फिर पेस्ट कर लिया, कॉपी किया तो पेस्ट कर लिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैनवा के बारे में जो बात कर रहे थे, कैनवा जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि इसको तो एडिटेबल वगैरह सब चीज हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे जो देखिए इसमें क्या है, ये तो प्रो है, ये प्रो नहीं है। देखिए ये इस तरह का, ये जो है ना ये प्रो नहीं है। अब ये 10 जो आपको जो स्लाइड्स हैं, इस 10 स्लाइड्स को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा कौन सा है, जैसे इकोलॉजी का, ये जो 14 स्लाइड्स, इन 14 स्लाइड्स को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप अपना जैसे कि कोई भी आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। वहां से आप यहाँ क्या करके आप चैट जीपीटी से कंटेंट, यहाँ से कंटेंट लेके आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट लेके स्लाइड 3, स्लाइड 4, ये कंटेंट लेके यहाँ पर बहुत आसानी से यू कैन पेस्ट हियर। ठीक है, ये पेस्ट कर सर सकते तो हैं आप। क्या ये सर तो क्या ये एक जो है वो टेम्पलेट बनाने का काम भी करेगा कि हम इसको मतलब मान लीजिए 5 स्लाइड हमने यहाँ से ली, फर्दर हम उसमें कुछ और अपने में बढ़ाना चाह रहे हैं और वो कंटिन्यू करेंगे तो वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। हाँ, वो नहीं, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसमें तो ना 20 स्लाइड है, तो आप 20 स्लाइड का इस्तेमाल कीजिए, चाहे 10 स्लाइड का इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए। ये तो मैन्युअली स्लाइड्स अवेलेबल है, उस पे बहुत सारे स्लाइड्स अवेलेबल है कैनवा पे। लेकिन हमने जो अभी पीछे जो क्रिएट किया था ना, जैसे कि पीछे हमने जो क्रिएट किया था, यहाँ पर जब हम ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट किया, ऑटोमेटिक क्रिएट क्या हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा हमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट किया, तो जैसे कि ऑटोमेटिक जो क्रिएट हो गया ना, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पर फिर सिर्फ कितना होगा, यहाँ पर 7 स्लाइड्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 स्लाइड्स है, वो चला गया मैंने इस पे ओवर, इस पे 7 स्लाइड्स है। तो 7 स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दूसरे स्लाइड्स लेना है, तो दूसरे स्लाइड्स में आप कहते हैं डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डुप्लीकेट में लिख सकते हैं, या इसका एक एक न्यू पेज हो सकता है, ऐड न्यू पेज, पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं, है ना, आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत से फोटोग्राफ्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने मैटर को क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द, आप मैटर यहाँ पर लिख सकते हैं, या किस तरह से, और इसको यहाँ पर इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, या इस तरह से डिजाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया है, आप यहाँ पर किसी भी फोटोग्राफ्स को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज हियर। ठीक है ना, आप यहाँ से बहुत आसान है, बहुत आसानी के तरीके से आप अब यूज कर, अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर अब ये 4 है तो यहाँ से एडिट इमेज का है, ये तो बहुत बड़ा थोड़ा उसमें लग जाती है। आप इस तरह से भी आप
मतलब इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारे बैकग्राउंड, जैसे फॉर एग्जांपल इसका है, इस वाले लेना, इसको लेना है, इसको यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ना। तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, सिर्फ यही लीफ आ गई। ठीक है ना। आप चाहे तो इनको इनको यूज कर सकते हैं, लीव्स के यूज कर सकते हैं, है ना, कैसे भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। यहाँ से कितने भी क्रिएट, जैसे कितने भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ये क्रिएट कर लिया, यहाँ आपने मतलब जो भी डिजाइन आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिजाइन है ना, ये डिजाइन क्रिएट किया गया ना, जैसे ये डिजाइन क्रिएट किया, तो इस डिजाइन के फॉर्मेट पे इसको कॉपी कर लिया आपने, इसको डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करने के बाद जो भी पॉइंट है आपका यहाँ पर रख लिया, इसको यहाँ पर फोटो चेंज कर दिया। या फिर ऐसा कर लिया आपने कि जैसे कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस वाले डिजाइन को चेंज कर लिया, यू करके इस तरह से आपने डिजाइन को कर लिया। ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आपने इसको डिजाइन को ऐसे कर लिया। ठीक है, ऐसे कर लिया आपने डिजाइन को, इसको और किसी तरीके से मोड़ लिया, मतलब कैसे भी आप कर सकते हैं, ये तो डिपेंड टू ऑफ योर कैपेबिलिटीज है ना, आप कैसे कर सकते हैं। ये तो मैनुअल चीज होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली, लेकिन सेविंग स्लाइड से क्रिएट कर सकता है ये। ठीक है ना। क्या करें? ओके। ठीक है, तो इस तरह सेव इन स्लाइड ही क्रिएट कर सकता है ऑटोमेटिकली, लेकिन मैनुअली आप कितनी भी चाहें वो कितनी कर सकता है। ठीक है। तो इससे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन किस चीज के बारे में कर रहे थे, हम लोग चैट जीपीटी के बारे में कर रहे थे, चैट जीपीटी कैसे है। ठीक है, तो एक चीज हम ये समझ में आ गया, चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। और दूसरी चीज हम लोग समझते हैं क्या है, हमारे पास जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जनरेटिंग लेसन के बारे में किया, और हमने क्यूज के बारे में हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पर चैट जीपीटी में राइट किया, और चैट जीपीटी में राइट करने के बाद हम कह रहे हैं, तो हमने कहा उससे क्रिएटेड 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्यूज ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक था, दूसरा टॉपिक क्या था हमारे पास, दूसरा टॉपिक था दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था हेलिकोबैक्टर थ्योरी पे। ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ये टॉपिक था। ठीक है, अब हम ये क्या करते हैं, पावर पॉइंट हटा देंगे आगे। ठीक है, फॉर द पीजी मतलब क्या है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है ना। ठीक है, तो वो 10 20 जितने भी चाहोगे आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या, आपने ये कहा कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपने आपको पता, तो आप ये क्या कर देगा आपको। ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन आपको बता देगा। देखिए, तो 15 क्वेश्चन आपको मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है। अब एक्चुअली ये क्वेश्चंस को वही समझ पाएगा जो टेक्निकली जो इससे हेलिकोबैक्टर से पिलोरी इंक्लूडिंग द गैस्ट्रिक, जो इसको टेक्निकली समझेगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, 15 क्वेश्चंस उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब हम इससे ये पूछते हैं, सो ठीक है, ये तो आपने प्रोवाइड कर दिए, तो काइंडली प्रोवाइड मी विथ आंसर। ठीक है ना। तो अब ये कर दिया आपने, अब हमने कहा कि आंसर भी हमें चाहिए इसके, ऐसे तो आपने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन आंसर तो वो क्या कर देगा, आपको पूरे आंसर आंसर भी प्रोवाइड कर देगा सारी चीजों के। ठीक है ना, देखिए एक एक क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर दिए कि उसमें क्या है। ठीक है ना, आंसर सी 5 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन, सब के क्वेश्चन के आंसर उसने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करते हो, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इससे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, दूसरी चीज थी हमारे पास डेवलप टीचिंग मटेरियल।
अब टीचिंग मटेरियल कैसे इसमें इंक्लूड करें, कैसे सर्च करेंगे, तो वो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम पे एक्चुअली जो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना, हम लोग इसको प्रॉम्प्ट को यहाँ से, प्रॉम्प्ट क्या है आपने लिखना है, मतलब जो भी लिखना है, कहने का जो भी पूछ रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा उससे, क्या पूछा, राइट ए डिटेल हैंड आउट ऑन द किसी पर भी, मतलब जैसे कि ऑन द क्लास मिडिवल मिडिवल इंडिया फॉर द, ठीक है, तो ये हमने किया, तो ये देखो पूरा हमें बता देगा ये क्या है, मिडिवल इंडिया के बारे में पूरा बता देगा, इंट्रोडक्शन बता देगा, पूरा बता देगा, ये सारी चीजें पूरा डिस्क्राइब करके बता देगा। जो भी मटेरियल बुक्स के बारे में आप चाहते हो, जैसे कि आपने ये कहा, ये जा दीजिए मिडिवल इंडिया, डेनेस्टी है, फ्यूडलिज्म है, सल्तनत पीरियड है ना, मसबरी सिस्टम, पीरियड ऑफ द मिडिवल इंडियन, अर्ली मिडिवल पीरियड है ना, राजपूत है, चालुक्यस और पालप्स, ये पालास, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या कर देगा, बता देगा पूरा। तो ये सारी चीजें हमें बता रहा है, इट इज, जो सारी चीजें बता रहा है हमें, ठीक है ना। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द मिडिवल इंडिया, ये क्या हुआ, पूरे पॉइंट दे रहा है, सारी जो भी मिडिवल इंडिया में जितना भी जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड सारी सिस्टम्स को हमें वो क्या कर दे रहा है, डिफाइन कर दे रहा है। और फर्दर रीडिंग बुक के बारे में भी उसने बता दिया, आर्टिकल्स के बारे में भी बता दिया है, वेब रिसोर्सेस के बारे में भी बता दिया, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बता दिया। अब ये सारी चीजों के बाद में उसने हमें 2000 वर्ड्स में ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर दी। अब हम उससे ये पूछ रहे हैं कि ये तो ठीक है आपने ये बता दिया, अब हम उससे डिटेल में पूछना चाह रहे हैं, डिटेल में क्या पूछना चाह रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हम उससे ये कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत इतना एन इस्लामिक एम्पायर हैज द रूल ऑफ द नॉर्थ इंडिया एस्टेब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड की डायनेस्टी अंडर द वेयर द मुमलुक्स खिलजीस तुगलक एंड सैयद एंड लोधीस। तो अब हम उससे पूछेंगे कि काइंडली काइंडली provide me details of this topic with 1000 words. ये 1000 words, कल, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर देगा, ये आपको, ये क्या कर देगा, इट इज प्रोवाइड यू, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, आपको हर चीज के बारे में डिस्कशन कर देगा और पूरी डिटेल में आपको सल्तनत पीरियड की डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, पूरा जो भी सल्तनत पीरियड से जो भी रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजों के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको क्रिएट करके दे देगा, मतलब क्रिएट नहीं, मतलब बना के दे देगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इससे जो हम
देखिए इल्तुतमिश के बारे में दे दिया है। मुमलुक स्लेब यानी डायनेस्टी इतने से इतने तक रही। इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, ठीक है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी थी, है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और उन्हें गुजरात मारवा, ये तुगलक डायनेस्टी, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, है। ये सारी चीजें मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। वो करेंसी के बारे में, दौलताबाद के बारे में फिरोज शाह तुगलक, सैयद डायनेस्टी, खिजर खान, ठीक है। वीकनेस एंड डिक्लाइन, द लोधी डायनेस्टी, बाबुल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस क्या था? इत्का सिस्टम, मुसन्नफदारी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है ना। कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट, इंडो इस्लामिक कल्चर, रिलीजियस इम्पैक्ट, आर्किटेक्चर्स एंड आर्ट, ठीक है। वो बहुत, ये कंटिन्यू ने कहा तो कंटिन्यू कर दीजिए, आपको इसमें थोड़ा सा कम हो गया तो वो कंटिन्यू फिर आपको क्या कर देगा, और कंक्लूजन उसने कंक्लूजन बता दिया। और आप एक एक टॉपिक के बारे में, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है, आप इस ये टॉपिक है इल्तुतमिश के बारे में, आप कहते हो इल्तुतमिश के बारे में, आप कहते हो कह दो कि इससे बस इतना पूछना है आप, राइट मोर डिटेल अबाउट दिस, अबाउट इन 1000, मतलब जितने भी, जैसे 5500, जितना भी अगर आपको चाह रहे हैं ना उतने डिटेल के बारे में, वो आपको इस टॉपिक के बारे में पता करके बता देगा। सारा इल्तुतमिश के बारे में बता देगा कि चीज इल्तुतमिश क्या था, कैसा था, पूरी हिस्ट्री बता देगा, कहने का मतलब राइज एंड पावर पूरी, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। आज मैं आपको यहीं पर ही रोकूंगा क्योंकि मेरा एक्चुअली दूसरा क्लास है 7:30 पे। तो टुमारो वी विल डिस्कस द ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारा पार्ट जो चैट जीपीटी का बताया उस पर भी डिस्कस करेंगे, और दूसरे जो हमारे एआई टूल्स है उन पर डिस्कस करेंगे। और हम कुछ प्रेजेंटेशन के टूल्स भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, बड़े ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग द टुडेज क्लास, यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड इट, है ना। हम लोग इसको एंड करते हैं आज, और वी विल कंटिन्यू टुमारो ना, है ना। तो कल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कोई किसी का कोई क्वेश्चंस? If you have any questions, okay, thank you sir, Albina, thank you ma'am, thank you everyone। और ये जो जितने भी लिंक दिए ना, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो आप अपना ना जो रिव्यू जरूर दे, गूगल रिव्यू में अपना दे दें कि आपको कैसा लगा, क्या गूगल रिव्यू था हमारे रिगार्डिंग। तो आप गूगल रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज ओके। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, thank you, sir. Very informative. Thank you very much. Thank you very much. और कोई, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग एंड करते हैं इसको, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप उस पे जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, यू कैन आस्क देयर। आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा ना, चैट जीपीटी का प्रैक्टिकल किया, चैट जीपीटी फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जेमिनी एआई आज रह गया है ना, जेमिनी एआई का कल कराएंगे, हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होगी। कल हम थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल ही सारा कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रैक्टिकल पर ज्यादा करते हैं, थ्योरेटिकल कम, ठीक है ना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। सी यू टुमारो, थैंक यू एवरीवन। ओके ओके, सी यू।